Bismillahirrahmanirrahim. Uh, MIS class. Today we are going to start a new chapter. This is securing information system. This is chapter number 8 of your book. But in the sequence in which we are going, this will be our sixth topic. You can say, or sixth chapter. You can say that we are going to cover. ठीक है, बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 8 है, जबकि हमारे कोर्स के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 6 बनता है. So let's start with this chapter. We'll start with the chapter opening case. जो इस chapter का opening case है, that is about hackers attack Singapore's telecom infrastructure. In October 2016, Singapore experienced an unprecedented attack on its internet infrastructure when StarHub, one of the nation's 3 telecom companies, faced a massive distributed denial of service attack, forcing users offline. ठीक है जी, तो this opening case study is about this attack, denial of service attack, जिसको हम DDoS कहते हैं. That happened in October 2016, or one of the 3 telecom companies, that is StarHub, this company suffered because of this denial of the distributed denial of service attack in October 2016. A distributed denial of service attack forces an online service to become unavailable by overwhelming it with traffic from compromised computers called botnets by infecting them with malicious software. Owners of these computers, a small cluster or in the millions, do not even know that their computers are compromised and being used for such attack. अच्छा, यहाँ पे उसकी डिटेल बताई गई है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किसको कहते हैं कि जब आपकी कोई ऑनलाइन सर्विस है उसको डिसरप्ट किया जाता है. इस तरीके से डिसरप्ट किया जाता है कि उसके ऊपर जो है एक आर्टिफिशियल ट्रैफिक क्रिएट की जाती है इंटरनेट यूजर्स की, जिसकी वजह से वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाती है. तो ये आर्टिफिशियल सर्विस जो ट्रैफिक है वो कैसे क्रिएट की जाती है? इट इज क्रिएटेड थ्रू botnets. The botnets are the computers which are infected by malicious software. ठीक है, जो different computers हैं वो उसको malicious software के ज़रिए से they are converted into botnets, और वो botnets they are used for this distributed denial of service attack. According to StarHub, the scale and complexity of the attacks were unprecedented. That is because instead of computers, it was malware-infected broadband routers and webcams that were involved in the attack that overwhelmed the company's broadband service. Ironically, these devices were all bought by the customers themselves. ठीक है, तो it was a very large scale attack, जिसके अंदर जो है वो broadband routers और webcams जो है वो उसमें यूज़ किए गए to create this overwhelming traffic, और जिसकी वजह से उनकी जो ये सर्विस थी वो that went down. The attack on Singapore's telecommunications company raises the specter of more and bigger distributed denial of service attacks in the future, especially in financial hubs such as Singapore and Hong Kong. ठीक है, तो अब ये एक जो 2016 का इंसिडेंट था that raises this concern that these type of attacks can happen in future as well. Especially इसका टारगेट कौन हो सकते हैं? जो आपके फाइनेंशियल हब्स हैं, जो कि सिंगापुर और हांगकांग उसमें आते हैं. In fact, the Singapore attack was likely related to the biggest global cyber attack in internet history, carried out with malware Mirai, which searches the internet for vulnerable devices and hijacks them. To make matters worse, Mirai's source code is published online, making the software available to practically anyone today. अब इसमें ये जो अटैक था सिंगापुर की कंपनी के ऊपर, तो उसके अंदर जो malware यूज़ हुआ that is called Mirai. ठीक है, और Mirai जो है it searches the internet for vulnerable devices and hijack them. ठीक है, ये जो malware है basically it is transmitted from one computer to another, और वो वहाँ पे जिस भी कंप्यूटर के अंदर जाता है वो उसकी vulnerabilities को चेक करता है कि क्या इसको hijack किया जा सकता है या नहीं, and
So once it finds that the computer has no adequate protection, तो फिर वो उसको यूज़ कर सकता है in this distributed denial of service attack. और सबसे ख़तरनाक बात इसकी ये है कि मिराई का जो सोर्स कोड है that is published online, basically it is available for anyone, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है. StarHub addressed the problem in the short term by sending technicians to the affected customers to clean up their devices by upgrading the software. At the same time, the Cybersecurity Agency of Singapore and Infocom Media Development Authority advised members of the public to adopt sound cyber hygiene practices to secure their devices. ठीक है, तो अब ज़ाहिर है प्रॉब्लम तो हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, जो उनके कस्टमर्स थे, उनके जो सॉफ्टवेयर्स थे, दे वर इन्फेक्टेड. तो उसका हल उन्होंने ये निकाला कि दे सेंड देयर टेक्नीशियंस टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर्स ताकि उसको रिपेयर किया जा सके. और सेकेंडली उन्होंने इसके लिए जो है वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो है वो उनको जनरेट किया और उनको एडवाइस किया कि जी वो दे शुड अडॉप्ट साउंड साइबर हाइजीन प्रैक्टिसेस to secure their devices. For the long run, अच्छा ये short run थे, अब long run के इन्होंने क्या किया? For the long run, Singapore is launching a new national cyber security strategy outlining a multi-tiered cyber security response plan. A new cyber security act is also in the pipeline. Singapore's Communication and Information Minister Dr. Yaacob Ibrahim urged businesses to also take responsibility, adding that governments alone cannot address the problem and that everyone should make cyber security a priority. ठीक है, तो लॉन्ग रन के लिए उन्होंने फिर ये स्टेप्स लिए कि उसके लिए उन्होंने दे लॉन्च्ड न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. तो और इसी तरह से उन्होंने अपना साइबर सिक्योरिटी एक्ट जो है वो भी ला रहे हैं. तो ये सारे उन्होंने स्टेप्स लिए to address this issue of hacking in the long run. In the same way, Malaysia has expressed its concerns about rising cyber attacks using smart devices. It has urged consumers to regularly change the default password of their devices and companies to prepare themselves using penetration testing. ठीक है, तो सिंगापुर के साथ यानी ये कंसर्न जो सिर्फ सिंगापुर की हद तक महदूद नहीं है, बाकी दूसरी कंट्रीज भी इसको दे आर ऑल्सो फीलिंग द हीट कि जी ये प्रॉब्लम आ सकता है. तो उसके लिए जैसे मलेशिया है उसने भी कुछ इसके लिए स्टेप्स लिए कि उन्होंने जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये यानी गाइडलाइन प्रोवाइड की कि जी अपने पासवर्ड्स को आप रेगुलरली चेंज करते रहें. और इसी तरह से जो है वो जितनी कंपनीज हैं वो अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग को देखते रहेंगे, जी इसको चेक करते रहेंगे दे आर नॉट being access their data, their system is not being accessed by unauthorized users. तो ये चीज़ उन्होंने इसके लिए मलेशिया ने इसके लिए ये इस तरह के स्टेप्स लिए. Mirai isn't the first malware of its kind, and neither are distributed denial of service attacks a new phenomena, but together they demonstrate the growing insecurity of the Internet of Things. अच्छा जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अपनी क्लास के अंदर भी कि जी द IoT इज़ अ प्लेटफॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट स्मार्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट including everything from toasters to home appliances. The problem is that these Internet of Things devices, unlike computers, have a little security built in, and most ship with well-known default passwords, no passwords, or easily hackable passwords. Further, most IoT companies do not have the resources to push out mass security updates, and so vulnerable devices are never fixed. ठीक है, तो एक तो malware का issue है जो कि which exists. The other issue is that more and more smart devices are being connected with the internet, और उनकी जो connection है that is most of the time insecure. उसके लिए जो है sometimes they don't have any password, or if even they have a password that is a default password कि बस एक दफ़ा उन्होंने password लगा दिया वो change नहीं हो सकता. तो it means कि if somebody knows or can figure out that password, so he can easily use that device. तो ये सारे issues जो है Internet of Things के साथ हैं.
इसलिए इनको भी देखने की ज़रूरत है कि जी इसको किस तरीके से सिक्योर किया जा सके, द IoT network. The StarHub attack was a watershed moment because it was considered the beginning of a new era of cyber attacks orchestrated through everyday devices. This completely changes the security landscape because of the enormous technical challenge of securing already compromised devices. ठीक है, तो अब ये एक जो स्टार हब का जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट हाईलाइटेड के जी दिस टाइप ऑफ अटैक्स कैन बी लॉन्च्ड फॉर आवर एवरीडे डिवाइसेस जो हम रोज़ाना रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, जैसे हमारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, एंड इवन IoT डिवाइसेस हैं, they can also suffer because of that. The only solution is to disconnect and break the vulnerable devices, rendering unusable millions of webcams, thermostats, and other everyday devices which consumers use. ठीक है, तो अब अगर आप देखें कि अगर ये सोल्यूशन अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि जो डिवाइसेस हैं दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, सिक्योर्ड नहीं है, तो अब उनको किस तरह से हम उसका हल क्या है, या तो हम उनको डिस्कनेक्ट कर लें या फिर हम उनको वी add a protective layer to these devices. So otherwise these uh, millions of webcams, thermostats, and everyday devices which consumers are using, they will become they are already compromised devices, so need to secure these devices. It is clear that the new era of connected and smart devices will fuel more security attacks, and the only way to address this challenge is through multi-pronged approach involving government regulation, new industry standards, and user education. ठीक है, अब इसका जो हल है वो ये है कि जी इसमें ये 3 तरह के काम इसमें करने की ज़रूरत है. नंबर 1 की गवर्नमेंट्स को अपने रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है. नंबर 2 इंडस्ट्रीज़ को अपने स्टैंडर्ड्स जो है डिफाइन करने की ज़रूरत है. और नंबर 3 के जितने भी यूज़र्स हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है. Singapore is working on to strengthen its infrastructure and processes. Okay, so that was the opening case that gave us an idea कि जी किस तरह के issues जो हैं वो कंपनीज को सामना करना पड़ रहा है, और what is the requirement of the day कि जी इसके लिए एक्टिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है. इसके ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो सिस्टम रिसर्च की ज़रूरत है कि किस तरीके से अपने सिस्टम्स को सिक्योर बनाया जा सके, और साथ साथ जो है यूज़र्स को भी इसके ऊपर एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हाउ दे कैन secure their devices, or they should know the risks that of the devices that they are using. Okay, now we move to the topic that why are information systems vulnerable to destruction, error and abuse. ठीक है ना, ये जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये इनके साथ 3 तरह के जो इश्यूज जो है वो दे आर देयर. नंबर 1 इज डिस्ट्रक्शन, के सारे के सारे जो हैं दे कैन ईजिली बी डिस्ट्रॉयड. दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एरर आ सकते हैं, जहाँ भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, तो देयर कैन बी सर्टेन एरर्स एंड दोज एरर्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द यूजर्स एंड फॉर द सिस्टम्स. और तीसरी चीज़ ये कि दीज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कैन बी अब्यूज्ड, unauthorized access can be made, data can be copied from them, stolen from those systems. So इस तरह के जो है abuses are also there. So why is it so that the information systems are so vulnerable? Can you imagine what would happen if you tried to link to the internet without a firewall or antivirus software? You know, most of the time जब हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो रहे होते हैं तो वी आर कनेक्टिंग बिहाइंड अ फायरवॉल, ठीक है, ताकि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा जा सके, या फिर हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वायरस अटैक से बचा जा सके. लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो क्या होगा? So your computer would be disabled in a few seconds and it might take you many days to recover. ठीक है, अगर आप फायरवॉल के बगैर चल रहे हैं, एंटीवायरस के बगैर चल रहे हैं, तो दिस कैन हैपन कि जी आपको द प्रॉब्लम यू कैन सफर इज दैट your computer can be disabled. If you use the computer to run your business, you might not be able to sell to your customers or place orders with your suppliers while
इट वाज डाउन। ठीक है, अगर आपका सिस्टम ही डाउन हो गया तो आपकी जितनी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो सारी स्टॉप हो जाएंगी। And you might find that your computer system had been penetrated by outsiders who perhaps stole or destroyed valuable data, including confidential payment data from your customers. और अगर आपका ये सिस्टम जो है वो इट इज़ पेनिट्रेटेड बाय आउटसाइडर्स, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस है उसको, तो फिर इजीली आपका उसमें से डाटा जो है वो दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है या अगर आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो आपका बिजनेस जो है इसमें से वो आपका डाटा इसमें से डिस्ट्रॉय कर सकता है या उसमें से डाटा स्टील कर सकता है, और इसी तरह से आपकी जो कॉन्फिडेंशियल पेमेंट डाटा है वो भी इसमें से एक्सेस कर सकता है। If too much data were destroyed or divulged, your business might never be able to recover। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए डिजास्टर भी हो सकता है कि अगर आपका डाटा जो है उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाए या उसमें से डाटा जो है निकाल लिया जाए, तो दैट then your business might not be able to recover। If you operate a business today, you need to make security and control a top priority। So what is security? Security refers to the policies, procedures, and technical measures used to prevent unauthorized access, alteration, theft, और physical damage to information system। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी के अंदर आती हैं कि आप क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जी आपका डाटा जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं किया जा सकता, आपके डाटे को कोई अनऑथराइज तरीके से ऑल्टर नहीं कर सकता, स्टील नहीं कर सकता उसमें से, और इसी तरह से आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो फिजिकल डिस्ट्रक्शन से भी आपने उसको इंश्योर किया, जैसे फायर है, फ्लड्स हैं, इस तरह के जो आपके थ्रेट्स हैं उनसे भी आपने उनको सिक्योर करना। तो दीज आर ऑल related to the issue of security। What is meant by control? Controls are methods, policies, and organizational procedures that ensure the safety of the organization's asset, the accuracy and reliability of its records, and operational adherence to management standards। ठीक है ना, चीज़ों को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को within you need to lay down the boundaries कि जी इन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, ताकि वो चीज़ें आपकी जो ताकि आप अपने सेफ कर सिक्योर कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को, और जो आपके जितना भी रिकॉर्ड है उसको आप एक्यूरेट बना सकें, और सिमिलरली जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप यू वांट टू एडहेयर टू दिस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, तो उसके लिए आप ये कंट्रोल्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए दैट इज़ द टॉप प्रायोरिटी कि आपका जो भी बिजनेस है उसके अंदर यू नीड टू have security and control in place। So why systems are vulnerable? ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात हो रही है कि इनको इतने जो है वो इनके अंदर जो है इतने जो रिस्क्स हैं वो क्यों हैं, इतने इन किस किस्म के इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। When large amount of data are stored in electronic form, they are vulnerable to many kinds of threats through communications networks। information systems in different locations are interconnected। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो क्या रहा है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ये हो रहा है कि जी आपके जो डाटा है दैट इज पास फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह आपका डाटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है, तो अब you are building different communication lines for that purpose। तो अब ये जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है बीच के अंदर, इस डाटा ट्रांसफर के अंदर there are so many risks involved कि ये डाटा जो है वो कोई और पार्टी भी एक्सेस कर सकती है, इस डाटा को स्टील किया जा सकता है, इस डाटा को जो है वो इसकी डेस्टिनेशन चेंज की जा सकती है। ठीक है, दैट इज पॉसिबल देयर। तो बहुत सारे इसमें जो है इस तरह के जो इश्यूज हैं they come because of this establishment of these communication channels। The potential for unauthorized access, abuse, or fraud is not limited to a single location, but can occur at any access point in the network। ठीक है, जब आपने नेटवर्क बना दिया, अब वो नेटवर्क किसको कनेक्ट कर रहा है? आपके यूजर्स को कनेक्ट कर रहा है, आपके सिस्टम जो यू माइट हैव अ सिस्टम
at a remote location that is connected to your head office, and that system might be located to another your corporate headquarter. So different places this network is there. अब उस network के अंदर जो है ना different access points बन गए, तो this unauthorized access, abuse or theft can happen at any access point, any of these access points. जैसे कि अभी हम इसमें नेक्स्ट फिगर के अंदर देख लेते हैं, फिगर 8.1 के अंदर, which illustrate the most common threats against contemporary information systems. So here is this figure that illustrates कि जी किस किस्म के हमें security challenges और vulnerabilities का सामना है. Now, the architecture of a web-based application typically includes a web client. ठीक है, ये आपका वेब क्लाइंट हो गया, यानी जो भी आपका यूजर है. Then we have a corporate server, और वो corporate server जो है that is linked to the corporate system, जहाँ पे आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है और डेटाबेसेस यहाँ पे काम कर रहे हैं. So each of these components presents security challenges and vulnerabilities. ठीक है, पहले तो ये जितने भी एक्सेस पॉइंट्स है ना, ये जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, हर पॉइंट पे आपको एक डिफरेंट चैलेंज का सामना है. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लाइंट की बात करते हैं या यूजर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमें चैलेंजेस का सामना है वो है अनऑथराइज्ड एक्सेस, या यहाँ पे एरर्स हो सकते हैं. ये दो तरह के प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे क्लाइंट या यूजर एंड पे आ सकते हैं. ठीक है, तो वी वांट टू प्रिवेंट दीज टू कि जी सिस्टम शुड नॉट बी authorized so there should not be an unauthorized access to the system, and secondly we want to minimize the errors. अच्छा, अब कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन क्लाइंट एंड कॉर्पोरेट सर्वर. अब इस कम्युनिकेशन लाइन के बीच में जो हमें इश्यूज हैं या जो हमें इसमें खतरात का सामना है वो कौन से हैं? इट कैन बी, दिस कम्युनिकेशन कैन बी टैप्ड. टैपिंग होता है जैसे किसी की आप कॉल रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, अनऑथराइज्ड दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और आप उसमें से उनकी जो उनकी आपस में की कम्युनिकेशन है वो आप एक्सेस कर रहे हैं. स्निफिंग इसी तरह है कि आप उनकी सुन लेने की कोशिश करते हैं कि भाई व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस. अच्छा, मैसेज ऑल्ट्रेशन की एक खतरा है इसके अंदर कि क्लाइंट ने कोई मैसेज भेजा है सर्वर को, या सर्वर से कोई मैसेज आ रहा है क्लाइंट की तरफ, तो उसको ऑल्टर किया जा सकता है. इस सारी इंफॉर्मेशन को इट कैन बी, देयर कैन बी थेफ्ट एंड फ्रॉड हेयर. और एक और जो खतरा है दैट इज दैट ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन लाइंस के अंदर प्रॉब्लम. अच्छा, अब अगर हम कॉर्पोरेट सर्वर की तरफ चले जाएं, कॉर्पोरेट सर्वर के अंदर हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है? कॉर्पोरेट सर्वर के अंदर हमारा सारा कॉर्पोरेट डाटा है विच कैन बी हैक्ड. ठीक है, यहाँ पे इसको अगर कोई हमारा जो दुश्मन है या हमारा कॉम्पिटिटर है, या अगर कोई हमें हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ही कैन इन्फेक्ट आवर कंप्यूटर्स थ्रू मेलवेयर. अच्छा, फिर इसी को थेफ्ट एंड फ्रॉड का इसमें खतरा है. वेंडलिज्म कि जी अगर कोई ये चाहता है कि जी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो दैट इज़ अनदर रिस्क. एंड देन वी ऑलरेडी डिस्कस दिस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कि जी समवन कैन फ्लड the corporate server through artificial means to make it unusable. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास चैलेंजेस हैं जो कि कॉर्पोरेट सर्वर के. अच्छा, अब हम अगर कॉर्पोरेट सिस्टम की तरफ चले जाएं जहाँ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस आपस में कम्युनिकेट कर रहा है और वो सारा सिस्टम यहाँ पे हमारा बैकअप से डाटा यहाँ पे पड़ा है, तो प्रॉब्लम थेफ्ट ऑफ डाटा. सारा डाटा यहाँ पे डाटा स्टील हो सकता है, डाटा कॉपी हो सकता है, डाटा में ऑल्ट्रेशंस की जा सकती हैं, हार्डवेयर के अंदर फेलियर आ सकता है, सॉफ्टवेयर के अंदर फेलियर आ सकता है. तो दिस होल थिंग गिव्स अस एन आइडिया कि जी हाउ why the information systems are so vulnerable, that at every point, at every step of the communication, every stage of the communication, there are different challenges, और उन challenges को, उन issues को address करने की ज़रूरत है, secure करने की ज़रूरत है. अच्छा, beside these, floods, fires, power failures and other electrical problems can cause disruption at any point in the network. ठीक है ना, तो यानी एक तो ये जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हमारे सामने चैलेंजेस हैं, दूसरे फिजिकल डिस्ट्रक्शन की भी हमें चैलेंजेस का सामना है कि विच कैन बी बिकॉज ऑफ फ्लड्स, विच कैन बी बिकॉज ऑफ फायर, पावर फेलियर एंड अदर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स.
Okay, so this figures 8.1 gives us an idea कि what are the contemporary security challenges and vulnerabilities faced by the information systems. Most common threat to information systems stem from technical, organizational, and environmental factors compounded by poor management decisions. अच्छा, क्योंकि information system है तो information system के अंदर technical चीज़ें हैं, technical issues होंगे. It is सपोर्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ इसमें जो है चैलेंजेस का सामना आ जाएगा. और फिर हमारे दिस सिस्टम इज बेस्ड, it is using the resources from the environment, तो then obviously environmental factors भी इसमें आ जाते हैं. और फिर उसके अलावा जो है हमें जो मसला आ सकता है इसके अंदर वो हमारी अपनी if the decisions of the management are not appropriate, यानी मैनेजमेंट ने कोई सिक्योर करने के लिए सिस्टम को मैकेनिज्म नहीं बनाया, लोगों को प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया. ठीक है, आई कैन गिव यू एन एग्जांपल हियर के जैसे जब पाकिस्तान में नए नए इंफॉर्मेशन सिस्टम आए तो जी हमारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इनको यूज़ करना शुरू कर दिया. अब वो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस का सारा डाटा उनके अंदर है. अब उसके अंदर किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर का कोई इशू आ गया या हार्डवेयर का कोई इशू आ गया, तो इट इज़ सेंट टू द सिविल मार्केट. Now this system which is sent to the civil market with all the confidential data in it, तो you can just imagine कि जी कितना उसमें बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है कि आपने अपनी सारी अपना जितना भी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा था उसको आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया. द ओनली रीजन कि आपको उसकी अंदाजा ही नहीं है कि व्हाट यू आर डूइंग. पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द सेंसिटिव ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द इशू. ठीक है, तो ये सारे इसमें हमारे सामने डिफरेंट चैलेंजेस हैं. इन द मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड, जो भी हमने फिगर 8.1 में देखा था, दैट वाज मल्टी टियर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग. vulnerabilities exist at each layer and in the communication between the layers. ठीक है, हमने अभी जो फिगर 8.1 देखा उसके अंदर हमने देख लिया कि जी हर पॉइंट ऑफ एक्सेस पे भी इश्यूज हैं और कम्युनिकेशन लाइंस के बीच में भी हमारे डिफरेंट किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स और चैलेंजेस का सामना. Users at the client layer can cause harm by introducing errors or by accessing system without authorization. ठीक है, क्लाइंट के हवाले से हमने बात की थी कि दो तरह के हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. नंबर वन इज द एरर. ठीक है, कि आप प्रॉपरली सिस्टम को यूज़ ना करें, इनपुट ठीक नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो उसकी वजह से आपको ज़ाहिर है कंप्यूटर के अंदर जो टर्म यूज़ होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आपने इनपुट गलत दिया तो आउटपुट भी गलत आएगा. तो इफ़ द इनपुट इज़ एरोनियस then the output will also be erroneous. और दूसरी चीज़ उसमें ये है कि जी अनऑथराइज तरीके से वहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है सिस्टम को, so that need to be protected. It is possible to access data flowing over networks, steal valuable data during transmission और alter data without authorization. तो ये जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसके अंदर ये सारे मसले हैं. ये सारे उसके अंदर रिस्क हैं कि दैट डाटा कैन बी स्टोलन, दैट कैन बी ऑल्टर्ड, उसके अंदर डाटा के अंदर ऑल्ट्रेशन की जा सकती है विदाउट ऑथराइजेशन. तो ये उसको जो है वो स्टॉप करने की जरूरत है या उसको सिक्योर करने की जरूरत है. रेडिएशन इज अनदर रिस्क. रेडिएशन में डिसरप्ट नेटवर्क एट वेरियस पॉइंट्स एज वेल. इंट्रोड्यूस तो रेडिएशन यही है कि जी आपके ओवर हीटिंग हो गया सिस्टम और वो सिस्टम काम करना बंद कर देगा, तो उसको भी आपने या आपका सिस्टम डैमेज भी हो सकता है रेडिएशन की वजह से, ओवर हीट होने की वजह से, रेडिएशन की वजह से. तो इसलिए सिस्टम्स को ऐसी जगहों पे लगाया जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो सूटेबल हो. Intruders can launch denial of service attacks or malicious software to disrupt the operations of website. ठीक है, तो कुछ जो हमारे जो सिस्टम को डिसरप्ट करना चाहे कोई, अगर दिस कैन बी एनी वन हु इज़ कम्पिटिटर, हमारा बिजनेस कॉम्पिटिटर है और वो बिजनेस हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इशू आता है ये गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर इशू आता है कि जो हमारे एनिमी नेशंस हैं, एनिमी कंट्रीज़ हैं, तो वो हमारी उस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं थ्रू डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या malicious सॉफ्टवेयर. मोस्ट थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके ये तो हमने डिस्कस. अच्छा,
Those capable of penetrating corporate systems can steal, destroy, alter corporate data stored in databases or files. ठीक है, तो जो बैक एंड पे हमारा डाटा का जो हमारा कॉर्पोरेट सिस्टम जहाँ पे रन हो रहा है, तो वहाँ पे ये इश्यूज कॉर्पोरेट सिस्टम के साथ जो है, जहाँ पे हमारा डेटाबेस है, उसमें इश्यूज आ सकते हैं कि उस डेटाबेस को में से डाटा स्टील भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और उसको ऑल्टर भी किया जा सकता है. System malfunction if computer hardware breaks down, is not configured properly, or is damaged by improper use of criminal acts. Or is damaged by improper use or criminal acts. ठीक है, तो सिस्टम में जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर हार्डवेयर के इश्यूज आ सकते हैं. और हार्डवेयर के इश्यूज क्या आ सकते हैं कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, यानी कंपैटिबिलिटी का इशू है, सिस्टम को आपने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, या फिर जो है वो उसके अंदर इट कैन बी डैमेज बाय इम्प्रॉपर यूज़, उसको प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया, या क्रिमिनल तरीके से भी उसको, जिसको हम वेंडलिज्म बोलते हैं, कि उसको हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है. एरर्स इन प्रोग्रामिंग, improper installation or unauthorized changes cause computer software to fail. ठीक है, हार्डवेयर के अपने इश्यूज हैं, सॉफ्टवेयर के अपने. सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपका प्रोग्राम, देयर इज एरर इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम उसको सही नहीं किया गया, या उसकी इंस्टॉलेशन ठीक नहीं की गई, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन आ गई, या फिर देयर इज अनऑथराइज्ड चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर जो काम करना छोड़ देता है. Power failures, floods, fires, or other natural disasters can also disrupt computer systems. ठीक है, तो अब ये जो आपका फिजिकल डिस्ट्रक्शन है उसके लिए भी आपने उसको सिक्योर करना है, तो यू नीड टू हैव अ बैकअप फॉर दैट. Domestic or offshore partnering with another company contributes to system vulnerability if valuable information resides on networks and computers outside the organization's control. तो ये अगर आपने अपने डाटा को सिक्योर करना है तो यू नीड टू हैव पार्टनरशिप with those companies के जहाँ पे you are confident कि आपका डाटा वहाँ पे secure होगा. तो that is a matter which need to be taken care of by the companies. Without strong safeguards, valuable data could be lost, destroyed, or fall into the wrong hands, revealing important trade secrets or information that violates personal privacy. ठीक है, तो आप ये सारे डाटा के हवाले से जो हमारे जो इश्यूज हैं वो यही हैं कि अगर आपको डाटा को सिक्योर नहीं होगा तो इट कैन फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स. ठीक है, उन आपके दुश्मनों, जैसे मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की कि डिफेंस रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है और वो आपके एनिमी कंट्री के पास चली जाती है, तो देन इट कैन बी डिजास्टर्स. और इस तरह से अगर आपके कोई ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो आपके जो है वो दे आर made known to your competitors, तो that can create problems for your business. और इस तरह से जो इंफॉर्मेशन आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ये प्राइवेसी का जो आपके पास द डाटा दैट रिक्वायर्स प्राइवेसी, वो अगर आपका डाटा पब्लिक हो जाता है तो देन यू कैन हैव प्रॉब्लम्स विद दैट. The popularity of handheld mobile devices for business computing adds to these woes. Portability makes cell phones, smartphones, and tablet computers easy to lose or steal. ठीक है, तो जो हम आजकल के जिस ज़माने से गुजर रहे हैं, तो हमें वी आर मोर रिलाइंग ऑन मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है, हमारे पास ज़्यादा पॉपुलर हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गई हैं, तो अब वो इजी टू कैरी हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट एट द सेम टाइम बहुत दफ़ा हमें इसका सामना करना पड़ता है कि वो चीज़ हम अपना स्मार्टफोन गुम कर बैठते हैं, अपना टैबलेट जो है वो गुम कर बैठते हैं, तो इट मीन्स कि वो डाटा उसके अंदर जो है वो भी, जिसके पास वो आपका स्मार्टफोन गया तो डाटा भी उसके पास गया. So that is another problem that need to be addressed. Smartphones share the same security weakness as other internet devices and are vulnerable to malicious software and penetration from outsiders. Smartphones that corporate employees use often contain sensitive data such as sales figures,
customer names, phone numbers, and email addresses. Intruders may also be able to access internal corporate system through these devices. ठीक है, तो अब स्मार्टफोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जा रहे हैं. अब स्मार्टफोन्स के अंदर जो है इफ़ दे आर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, तो उसके अंदर फिर आपके सेंसिटिव डाटा भी हो सकता है, विच इंक्लूड योर सेल्स इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपके कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी उसमें स्मार्टफोन के अंदर हो सकती है. तो if someone is accessing that smartphone or the data that is there in the smartphone, तो वो आपके लिए फिर बिजनेस के लिए आपके that is not good for your business. और इसी तरीके से स्मार्टफोन्स जो लिंक हो रहे हैं आपके, दे आर through internet, they are connected with your corporate servers and corporate systems. तो अगर वो corporate system के साथ लिंक हो रहे हैं तो that can be also be uh, accessed by the intruders, और वो फिर आपके लिए again that can be a problem. So with this we come to the end of our today's lecture. So what we covered in today's lecture is basically we covered a case study that gave us an idea that how the hackers can they can get access, or they can disrupt your information system to gain advantage. So that was the opening case study that we covered, and then we discussed the topic that why are information systems vulnerable to destruction, error and abuse. ठीक है, तो उसके अंदर हमने फिर ये सारे different factors को देखा कि why they are so why the information systems are so vulnerable. So that's all for today's lecture. Hope the things are clear. Still, if you find anything which is not clear to you, or some confusion, that any content of today's lecture which is creating doubt in your mind, kindly note it down, and then you're most welcome to ask it during your class time, or you can check, you can even ask using your WhatsApp group. So that's all for today's lecture. Thank you very much. Hope to see you on Monday with the new lecture from this chapter. Some announcements to be made here कि जी एक तो ये कि हमने we are approaching to the end of our semester, तो उस हवाले से जो है आपका projects जो हैं वो आपको assign हुए हैं, तो you need to submit your project reports using the Google Classroom. ठीक है, सबमिट करनी है आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, और साथ ही आपको असाइनमेंट्स भी आज दे दी गई हैं, तो वो असाइनमेंट्स भी आपने गूगल क्लासरूम के थ्रू अपनी जो है वो असाइनमेंट्स भी आपने सबमिट करनी है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.